नारायण समूह की ओर से नासा में चयनित छात्रों को बधाई। एनएसएस नासा स्पेस सेटलमेंट परियोजना में नारायण समूह का महत्वपूर्ण योगदान वास्तव में सराहनीय है। उनके समर्पण और कड़ी मेहनत से उनकी प्रभावशाली उपलब्धि स्पष्ट है, जिससे पैन इंडिया चयन में 45% हिस्सा हासिल किया है। हम नासा के कार्यक्रम के लिए चुने जाने पर छात्रों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देते हुए रोमांचित हैं। ये असाधारण उपलब्धि उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और असाधारण प्रतिभा को दर्शाती है। नासा कार्यक्रम के लिए चुना जाना उनकी उत्कृष्ट क्षमताओं का प्रमाण है और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। उनका चयन न केवल एक व्यक्तिगत जीत है, बल्कि हमारे प्रतिष्ठित संस्थान नारायण ई टेक्नो स्कूल के लिए भी गर्व का स्रोत है। अत्यंत गर्व के साथ हम निम्नलिखित छात्रों को बधाई देते हैं। प्रथम पुरस्कार धारक 8वीं कक्षा के दिग्वर्धन ठाकुर, सेक्टर 77 मानेसर शाखा, कलात्मक योग्यता ग्रेड 9, सेक्टर 37C शाखा के श्रीदर्श को दर्शाती है। यंगर ऑनरेबल मेंशन ग्रेड 7, सेक्टर 77 मानेसर शाखा के हर्षिता, वेदांत, कार्तिकेय, दिवा, अक्षिता, मयंक को प्रदान किया गया। 28 विभिन्न देशों से 5200 प्रविष्टियों के साथ विश्वव्यापी प्रतिभागियों की कुल संख्या 29,000 थी। एनएसएस ने 144 प्रविष्टियों का चयन किया, जिनमें से 73 भारतीय योगदान थे। नारायणा ने 40% नारायणा हिस्सेदारी के साथ 34 परियोजनाओं में योगदान साझा किया, जहां नारायणा, दिल्ली, यूपी और पंजाब ने 6 चयनों में योगदान दिया। चूंकि वे नासा के साथ इस रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं, हम सभी चयनित छात्रों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। एक बार फिर सभी चयनित विद्यार्थियों को इस असाधारण उपलब्धि पर बधाई और उत्साह से उनकी प्रगति का अनुसरण करने और उनकी भविष्य की सफलताओं का जश्न मनाने की आशा करते हैं। So I am Mrs. Apurva Kharbanda, principal from Sector 77 Manesar branch, Narayana E-Techno School. So as we are talking about the projects, the first project that has won by Mr. Master Digvardhan, grade 8. The project is Meghmala. So here the child has researched, or he has created a space colony in space. And the concept that the child has used is that Megh means clouds. So there is a chain of clouds. Same way the child has made a space settlement in the clouds, wherein the children have researched how to get oxygen on that space colony, how to provide water in that space colony. So child has made a suitable settlement, wherein today when we are talking about global warming and all, so there is a particular settlement where people can go and settle. This is how they research and they use their creativity. Same way we have an honorable mention in grade 7 by 6 students, and those children have researched on moksha. The name of their project is moksha. Yes. The Narayana Institute, they provided some special facilities those students were working on the project. We do have provided various Zoom sessions, online sessions, offline sessions, orientation programs, which motivate the children to research more on astronomy. So we do have astronomical Olympiads also. We have JOSA Olympiad, wherein our children have bagged from various branches first positions also. So based upon the research into the astronomy and space, these children are definitely the future astronomical scientists, or they may go into the IIT if you talk about aeronautical engineering, astronomical engineering. This is what phase they are going to enter into their lives. So NASA is basically about inculcating more creativity into the students, wherein child has to design a new settlement or asteroid mining, more and more research into space. This is what is the agenda of the projects. So we have submitted around 10 projects from Manesar branch. Same way from every branch of Narayana, we have submitted various projects. And as respected madam said, we have got all these laurels this year. Thank you. Ponguru. I'm the director of the Narayana Group. We are gathered here on the occasion of NASA. As you all know, NASA is one of the most prestigious examinations, and definitely getting selected in that is a prestige. So we're extremely happy. Congratulations to each and every student, each and every parent, in fact, and the entire Narayana team who has contributed for this results. Let me give you a little details about NASA. The total number of selections worldwide are 144. Out of that, students' selections in India are 73. That is 50.69%
are Indian selections. So we should all be super proud to be an Indian. It's one of the most prestigious, memorable moments as well. And if you talk about Narayana, we have 34 selections, more than 26% in all India competitive examinations. And definitely, we're looking forward for more such results. I would like to congratulate everyone and thank you. Ma'am, if you can explain about the projects, what kind of project they have to submit? Okay, I think sir will be better. क्या नाम है बेटा? मेरा नाम हर्षिता है। आपका सिलेक्शन हुआ है नासा के लिए, यहाँ पे कंपटीशन में भाग लिया था, क्या कंपटीशन था और कितनी मेहनत करी? ये एक नासा एनएसएस का कंपटीशन है, अमेरिका से होता है ये। इसमें ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हमें स्पेस में, अंतरिक्ष में कुछ जैसे लाइफ वहाँ पे होने के लिए, जैसे स्पेस कॉलोनीज होती हैं या फिर एस्ट्रॉइड माइनिंग होती है, जैसे एस्ट्रॉइड्स को माइन करना, या फिर स्पेस होटल्स, जैसे स्पेस में खाना खाने के लिए जो होटल्स होते हैं वो सब करना। तो ये प्रोजेक्ट जो था ये इजी नहीं था, क्योंकि हमें वहाँ ग्रेविटी, खाना पीना सब कुछ जो स्पेस में नहीं होता वो मैनेज करना था। लेकिन हमारी टीचर्स ने हमको हेल्प करी तो हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं हुआ। वैसे अगर मैं बताऊँ तो ये इजी नहीं था। कितने चैलेंजेस क्या क्या आया? सबसे पहले जैसे हमको बोला गया था कि हमने काफ़ी रिसर्च करी थी नए नए प्रोसेसेस ढूंढने के लिए, कि नए तरीका है कोई किसी चीज़ के लिए, जैसे ग्रेविटी के लिए, या फिर खाना पीना के लिए कोई नई तरीका आया कि जैसे नई इन्वेंशन होती है ना, तो वैसे कोई नई तरीका है तो उसको ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई थी। तो ये चैलेंजिंग था हमारे लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिग्वर्धन है। क्या आपने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें आपकी कौन सी रैंक है? मेरा प्रोजेक्ट जो था वो एक स्पेस कॉलोनी है। उसमें हम अंतरिक्ष में इंसान के रहन सहन के लिए अलग अलग रिसर्च करते हैं। तो मेरा उसमें फर्स्ट रैंक आया दुनिया में, और उसमें मैं बहुत खुश हूँ उस बारे में। किस तरह की आपने मेहनत की और क्या क्या चैलेंजेस का सामना किया? जैसे कि आपने पहले भी सुना है, 6-7 महीने हम इस पे लगे रहे हैं, दिन रात बहुत काम किया इसके लिए। पूरा दिन कंप्यूटर पे लगे रहते थे, कुछ कभी ढूंढना, कभी लिखना, और हमारे टीचर ने भी बहुत सहायता की हमारी। आइडिया कहाँ से आया, ये किस तरह का उसमें? ये आइडिया जब इस स्कूल में आए थे, हमने सुना था कि ऐसा कंपटीशन होता है, तब से हमारे मन में था कि हम भी भाग लेंगे इसमें। फिर हमने किया और फिर अब ये ऐसा रिजल्ट आया तो हम बहुत खुश हैं। जो स्पेस में कॉलोनी डेवलप करने के लिए किया गया, उसमें क्या आइडिया दिया गया है, कैसा? जो मेरी कॉलोनी है उसमें 50 से 100 लोग रहते हैं। उसका काम ये है कि जो भी आजकल की नई टेक्नोलॉजी टेस्ट करने की आवश्यकता होती है, जो बाद में जरूरी होती है, उनकी टेस्टिंग वहाँ पे होगी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज वेदांत। क्या क्या चैलेंजेस आया और क्या प्रोजेक्ट आपने बनाया? हमारे प्रोजेक्ट का नाम मोक्षा है। उसका मतलब है द रीबर्थ फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ और लाइफ। और हमारे प्रोजेक्ट में हम ये बताते हैं, अगर किसी दिन पूरी ख़राब हो गई, जैसे अगर सांस लेने के लिए अच्छी हवा ना रहे, तो हम लोग ऐसी एक कॉलोनी बनाएंगे स्पेस में, जहाँ पर हम बिना किसी दिक्कत के रह सकें। वहाँ पर हर टाइप का खाना, पानी और हवा सब होगा। जैसे अगर आप ज़मीन पे रहते हैं वैसा ही लगेगा। इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आया और कितने टाइम से आप मेहनत कर रहे हो? मैं इसके लिए 6 महीनों से मेहनत कर रहा हूँ, और यह करने में मेरे को बहुत समय लगा। मेरे को रात में पढ़ाई की जगह ये करना पड़ता था, पर हमारे टीचर्स इतने अच्छे थे, उन्होंने पढ़ाई में हमारी बहुत हेल्प करी, और इसी कारण से मेरा पढ़ाई में भी अच्छा फोकस रह पाया और मैं ये भी अच्छे से कर पाया।